Hello everyone, welcome to our channel Study Extraordinary. In the previous video, we had discussed some basic problems related to whole numbers. In this video, we'll carry on our problem section and will also solve that magic puzzle which I had given you in the previous question. I feel you had solved it. चलो फिर check करते हैं कि तुमने सही solve करा है या नहीं. Let's get started. So this was the question, this puzzle I had given you in the previous video. The hint that I gave you was that the sum of every row and column is 34. Okay, so now we have to find the missing values. तो हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं कि 3 वैल्यूज हमें रो 1 में दे रखी है एंड 3 वैल्यूज हमें कॉलम 3 में दे रखी है. तो सबसे पहले रो 1 का सम चेक करते हैं कि हम यहाँ पे क्या वैल्यू डालें सो दैट आवर सम बिकम्स 34. ओके, सो लेट्स ऐड 12 plus 8 plus 13. So 12 plus 8 will be 20 plus 13. This will be equal to 33. So if we add 1 to this value, then it will become 34. So यहाँ पर हमने 1 लिख दिया. I am putting a cross mark over here so that you will know that these were the missing values. Okay. Now let's check this column number 3. 12 plus 7 plus 6. So this will be 12 plus 13 and this will be 25. So what should come at this place so as to make the sum 34? We have to subtract 25 from 34 and this will be, I think, 9. 9 should be here. So now let's write 9. Now how should we proceed further? We have 2 values over here and we have 2 values over here and 2 values over here. Can we see the diagonal? Are there 3 values in the diagonal? Yes, we can see that in this diagonal we have 3 values. So we can find the missing value over here. So let's add the values of this diagonal. 1 plus 7 plus 16. This will be 8 plus 16. That will be 24. So now 34 minus 24, 10. 10 comes over here. Now this row again has got 3 values. We can find the 4th one. Also this place has 3 values, so we can also find this one. You can use any way. You can add the sum of the rows or you can add the sum of the columns. I would be going for the row 1. Sorry, for the column 1. Let's add 13 plus 2 plus 16. So this will be 15 plus 16. That would be 31. Now subtract 31 from 34 and you will get 3. अब आप देख रहे हो कि काफ़ी easily ये चीज़ हो पा रही है, बस बात ये है कि हमारे addition and subtraction बिल्कुल correct होना चाहिए. Now we have found this value. Now let's check for this diagonal. No. अब यहाँ पे जो हमारी situation आ गई है वो ये आ गई है कि अब हमें hit and trial करना पड़ेगा क्योंकि हमारी rows और columns में कहीं भी हमें 3 values नहीं मिल रही हैं to find the value. तो अब हम यहाँ से start करते हैं. Okay, let's start with the diagonal first. Let's see कि हम यहाँ पे क्या value ऐसी add करें so that first let's see the sum of these two values. For this diagonal it will be 13 plus 6, that is 19, and we have to add 2 values more in this diagonal to make our sum 34. Okay, so let's name this value as x and this value as y. Now you can see again from this row, if we put some value over here, then the sum should again be 34. So let's write the equation of this line as well. That means you have to add one value to this. अब जो values आप एक बार use कर चुके हो उनको आप repeat नहीं कर सकते हो. y के लिए एक equation आपकी और बन सकती है, this one. यहाँ पर आपको एक value यहाँ पे भी missing है और वो y के साथ आपकी equation बन रही है. तो आप यहाँ की भी equation लिख सकते हैं, 16 plus 9 plus y plus some more value. Here also we can add a dash and this will be your 25 plus y. Okay,
तो चलो हर वैल्यू से हम करके देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। सबसे पहले हम लास्ट वाली रो का अपना देखते हैं। तो 34 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 9। अब 9 तो आप ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर चुके हो, तो 9 जो होगा बार y, और जो ये आपकी ब्लैंक स्पेस है, लेट्स टेक दिस एज k, तो ये जो k स्पेस है इन दोनों का सम जो है हमारा 9 आना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जिनसे हमारा सम 9 आ सकता है, आप ये सोच के देखो। 2 आप यहाँ पे यूज कर चुके हो, 1 आप यहाँ पे यूज कर चुके हो, 8 आपके पास यूज्ड है, 6 यूज्ड है। तो आप जो वैल्यूज यूज नहीं हुई हैं आप उनमें सोच के देखो। लाइक अब यहाँ पे हम 5 + 4 एक हमारे लिए पॉसिबिलिटी बन जाती है 9 बनाने के लिए, बिकॉज 7 and 1 वी हैव यूज्ड, 7 and 2 we have used, 8 and 1 we have used, 3 and 6 we have used. So what the possibility remains is 5 + 4. तो या तो इधर 5 आएगा या फिर इधर 5 आएगा। तो हम हिट एंड ट्रायल के मेथड से ट्राई कर सकते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि 5 हमने k की जगह लिया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना 5 एंड आई एम पुटिंग अ सर्कल सो एज टू रिमेंबर कि ये वैल्यू हमारी अभी हिट एंड ट्रायल से आई है। तो अगर यहाँ पे हमारा 5 आएगा, सो एट वाइज प्लेस विल बी 4 बिकॉज 5 + 4 is 9. दैट वॉज आवर कॉम्बिनेशन। ओके, सो नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू हियर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर? 15 + 4 + 1 will be equal to 19 plus 1, that is 20. Okay, so here you have to subtract 20 from 34 and that will be 14, right? Now we can see that we can calculate this value of x as well from the diagonal. Okay, so let's check the sum. 6 + 4 + 13, this will be 10 + 13, and here the sum will be 23, and now you have to subtract 23 from 34, so this will be your 11, and you can see that no value is getting clashed with the existing value, and hence the solution of this puzzle is this. Okay, I hope you understood this. There are a lot of many puzzles like this available on the internet. You can search and you can solve. Okay, so now we'll come to the questions related to our chapter whole numbers. Coming to our next question, ये भी कुछ ना कुछ माइंड गेम जैसा ही है, कुछ इंटरेस्टिंग सा है, पर आपके माइनस के कंसेप्ट क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, हमें फिल इन द मिसिंग बॉक्सेस। ये जो हमारे बॉक्सेस यहाँ पे खाली स्पेसेस है ना, इनमें आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों में आपको सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। यहाँ पर क्या है आपके पास, आपको 7 में से कुछ ऐसा माइनस करना है कि आंसर आ जाए 8। देखने में अजीब लग रहा है ना, कंफ्यूजिंग। ये कैसे हो सकता है 7 में से माइनस करने के बाद भी 8 आ जाए? अच्छा, अब जरा आप इसको बोरोइंग के मेथड से सोच के देखो, जो हमने जूनियर क्लासेस में बोरोइंग पढ़ी है ना, कि जब हमारे पास कम वैल्यू होती है तो हम राइट से वैल्यू ले लेते हैं, वैसे करके देखें। तो चलो बोरो करते हैं हम। यहाँ से 1 में से हमने बोरो कर लिया, यहाँ पे हो गया 0। 17, अब 17 में से ऐसा क्या माइनस करो कि 8 आ जाए, ये तो हम कर सकते हैं। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, 17 है हमारी लार्जर वैल्यू, ये है हमारी स्मॉल वैल्यू, और यहाँ पे भी कोई एक स्मॉल वैल्यू ही आएगी, तो इन दोनों वैल्यूज का सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम 17 में से 8 को माइनस कर दें तो जो इस प्लेस पे आएगा वो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो लेट्स जस्ट सब्ट्रैक्ट 8 from 17 and we'll get 9, right? Now coming to the next part, अब यहाँ पे फिर हमारे पास 0 बन गया, तो फिर से हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बोरोइंग करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 8 एंड यहाँ पे बन जाएगा हमारा 10। तो 10 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 5। Now what should be subtracted from 8 to get 5? I think this is simple. You'll subtract 3 and this puzzle is solved. Now coming to the next one. Again 7 को आप 3 में से माइनस नहीं कर सकते, फिर बोरोइंग का कंसेप्ट लगाओ। अब यहाँ पे भी 0 है, आप यहाँ से भी बोरो नहीं कर सकते, नेक्स्ट पे भी 0 है, यहाँ पे भी आप बोरो नहीं कर सकते, बट उसके बाद हमारे पास 1 है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो वील पुट अ 0 ओवर हियर।
अब हमारे बोरोइंग के कंसेप्ट में हमें पता है कि जहाँ पे भी 0 होता है हम वहाँ पे 9 वैल्यू दे देते हैं, लास्ट वैल्यू में हम 10 ऐड कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 13. सो 13 minus 7, 6, 9 minus 8, 1, 9 minus 9, 0. नाउ 0 में से 6 कैसे माइनस करें, फिर बोरोइंग का कंसेप्ट, फिर 0 0 यहाँ से आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4. दिस विल अगेन बिकम 9 and this will also become 9 and this will become 10. So 10 minus 6 you will get 4. अब 9 में से आप क्या माइनस करो कि आपके पास 4 आ जाए, 5. यहाँ पे क्या माइनस करोगे कि 8 आ जाए, वही सेम कंसेप्ट कि इसको इसमें से माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 1. And we have solved it. Find the product of the largest 3-digit number and the largest 5-digit number. In this question we have to multiply 999, that is our largest 3-digit number, with 99999, which is the largest 5-digit number. So if you will multiply it normally, then आपको पता है कि बहुत ज़्यादा complex calculations हो सकती है जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ सकता है. So we'll first try to expand this value in a way that our calculation becomes easier. So this will be we can expand it as the smallest 6-digit number minus 1 because this is the largest 5-digit number. Okay, तो अब यहाँ पर you can see this is your distributive law over subtraction, और ये हमने अपनी properties of multiplication में पढ़ा ही हुआ है पहले, तो आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो like this. नाउ सिर्फ आपको एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो लेट अस परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन टुगेदर. तो यहाँ पे हम अपना बोरोइंग स्टार्ट करेंगे. सो दिस विल बिकम 8, देन 9 9 9 एंड 9, एंड दिस विल बी योर 10. 1 0 0 9 9 8 9 and 9, and you can see how easily you got your answer. Next, अब ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े समझने वाले हैं, इनमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कि बेसिकली काइंड ऑफ फैक्ट्स हैं जो आपको इन जनरल भी रिमेंबर करने हैं. ओके, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड. अब दो नंबर्स हैं मेरे पास a एंड b, और a मल्टीप्लाइड बाय b जो है वो है 0. अब आप अपनी प्रॉपर्टीज पे पहुंच जाओ. हमने क्या पढ़ा था अपनी प्रॉपर्टी में कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0, है ना. तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके. उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो a है, either this will be 0 or our b will be 0, and the case can also be possible that both a and b are 0. So what you have to keep in your mind is that whenever the sum of any 2 numbers, 3 numbers, 5 numbers, 8 numbers, whatever is 0, a single number can also be 0, or all the numbers can also be 0. Okay, so either a will be 0, b will be 0, or both will be 0. This is the solution of this question. Now again, one more fundamental question. It says if a is not equal to 0 and a multiplied by a is equal to a, then find the answer. So now हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है this, a हमारा 0 नहीं है, तो अब हम 0 के अलावा और क्या पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं. Now think of again the property of multiplication in which we had done that whenever we multiply 1 with any number, what we get is the number itself. Okay, so अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज सेम है, and whatever you are multiplying you are getting the same as your answer. So काफ़ी कुछ ये हमारी उससे रिलेटेड है. हम इसे 0 भी लिख सकते थे, बट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि 0 के इक्वल नहीं है 1 आर a. So what we'll do is we can check. So 1 multiplied by 1 will be equal to 1. So this is a universal law that whenever any number is multiplied by itself, the answer will be the number itself. And अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन गिवन है कि यहाँ पे तीनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं, मल्टीप्लिकेंट और हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, और जो हमारा आंसर है,
तो हमारा आंसर ए का या उस वैल्यू का 1 होगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिवीजन क्वेश्चंस. ऑन डिवाइडिंग 55,390 by 299, the remainder is 75. Find the quotient using the division algorithm. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है. डिवीजन एल्गोरिथम इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय योर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट when our dividend is 55390. okay, divisor is 299, then we don't know the quotient. This is what we have to find and our remainder is 75. तो अब हमें इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है क्वेश्चन. तो सबसे पहले ये रिमाइंडर को हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस विल बिकम 55390 minus 75 is equal to 299 into quotient. So subtraction के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 55315 and this will be equal to 299 into quotient. Okay, अब quotient निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 55315 को डिवाइड करना होगा with 299 and जो उसका quotient आएगा will be the quotient of your answer. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिवीजन. यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके डिवीजन परफॉर्म करना है. लेट्स कॉपी द वैल्यूज फर्स्ट. नाउ अब आप इस मेंटली 299 को 300 की तरह सोच कर देखो. व्हाट विल यू मल्टीप्लाई फर्स्ट 3 डिजिट्स आपकी जो हैं इसमें आप अगर वनजा भी करोगे तो आई थिंक जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से कम आएगा. तो लेट अस परफॉर्म. माइनस करेंगे हम, कैरी ओवर लेंगे इधर से, तो 13 माइनस 9 दिस विल बी अ 4. देन 14 माइनस 9 अगेन हमने कैरी ओवर लिया हुआ है. 15 माइनस दिस विल बी अ 14. यस, दिस विल बी अ 4 एंड दिस विल बी 13. सो 14 माइनस 9 दिस विल बी अ 5. देन 4 माइनस 2 दिस विल बी अ 2. ये 254 हमारा जो है छोटा है 299 से. नाउ दिस वन कम्स हियर. नाउ अगेन थिंक एज 300 में आप क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करते कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 2500 आता. सो योर 8 3 24. सो अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते 300 में तो ये वैल्यू आती. बट 300 इससे कहीं ना कहीं थोड़ी एक बड़ी वैल्यू है. तो हम एक बार पहले हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं एंड एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं. देखते हैं जो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड बैटरी होगी सही उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 7. 9 7s are 63. Then 63 plus 6 that will be 69 and 7 2s are 14 plus 6 20. 2093. ये वैल्यू तो काफ़ी स्मॉल लग रही है हमें. तो चलो एक बार 8 से भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. लेट अस परफॉर्म इट बाय 8. सो दिस विल बी 9 8s are 72. कैरी ओवर योर कैरी ओवर 7. The 9 8s are 72 plus 7. This will be 79. Then 8 2s are 16 and 16 plus 7 will be your 23. Okay. So now this is comparable with this value. So let us put this. Here your question will be 8. 2 3 9 2. Now subtraction हम यहाँ पे perform करेंगे. So this will be your 9. Here this will be your 4 1 4 9 5. Okay. So now this is coming. Now we have to find again once more hit and trial. तो यहाँ पे देखो I think it will go by 5. Let us first check. So 299 into 5. 9 5s are 45 4. Then 49 4 and yes. This value is exactly divisible by 5. So this will be your 1495 and you will perform the subtraction and the question you are going to get is your 185. The next question is what is the least number that has to be subtracted from 13,601 to get a number exactly divisible by 87. अब यहाँ पे क्वेश्चन अपने आप आपको ये चीज़ कन्वे कर रहा है कि ये जो नंबर हमारा 13,601 है
इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 87 से तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, यू विल गेट अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको लीस्ट वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है, जो आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपका ये सोल्यूशन आ जाए। ऐसा एक क्वेश्चन और हमारा बन सकता है, दैट विल बी व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज टू बी एडेड। ये दोनों केसेस जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में बहुत सिंपली हो जाता है ये चीज, क्योंकि हमने क्या पढ़ी है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में हमें पता है कि हम रिमाइंडर को ऐड करते हैं। अगर हम उस रिमाइंडर को ऐड नहीं करें, सिर्फ अपने डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट रखें, तो जो भी हमारा आंसर आएगा दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय द डिवाइजर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि हम यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको अपने डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वली डिविजिबल आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर डिवीजन जो आपको परफॉर्म करना है वो हम साथ में करते हैं, डिवीजन परफॉर्म, एंड देन वी विल चेक कि सब्ट्रैक्शन करके क्या वैल्यू आ रही है। सो नाउ आई हैव परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन एंड यू कैन क्लियरली सी कि हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 156 एंड हमारा रिमाइंडर आ रहा है 29। आप अपना डिवीजन चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया है। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना था, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको, रिमाइंडर को अपने हमारे डिविडेंड में से। सो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 13601 minus 29. So after subtraction what you will get is this will be 2 and then 7, 13572. This will be your answer. What is the least number that has to be added to 1056 to get a number exactly divisible by 23? So in this question this is very similar to the previous one, but यहाँ पे क्या है, हमारे पास एडिशन करना है हमें। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि एडिशन की टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम सब्ट्रैक्शन, बट स्टार्ट हम बेसिक से ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिवीजन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे जब आप अपना डिवीजन परफॉर्म करोगे, आई थिंक डिवीजन आप लोग खुद कर सकते हो, बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है। तो जब आप डिवीजन परफॉर्म कर लोगे, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस कि आपका जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी योर 45 एंड द रिमाइंडर दैट यू विल गेट विल बी 21। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, रिमाइंडर आ गया। अब आप एक चीज लॉजिकली सोच के देखो कि जब भी आप डिवीजन, जब भी आपको कोई नंबर ऐड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, रिमाइंडर दे रखा है। इस रिमाइंडर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा डिविडेंड आएगा उससे थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा है। अब अगर आपको एग्जैक्टली डिविजिबल कोई चीज चाहिए और 45 हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब 45 मल्टीप्लाइड बाय 23 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय योर 1056, ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे ये आपका इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नेक्स्ट मल्टीपल होगा 23 का, यानी अगर हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा हमारा 23 से, क्योंकि ये तो उसी का मल्टीपल है, होना ही चाहिए। तो एक बार पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। So this will be 13, 12, 1, 9, yes, 1058 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। अब आप 1058, अब आपको, आपके पास इनिशियल वैल्यू है ये, इसमें आपको ऐड करना है x सो दैट कि आपका आंसर आ जाए 1058। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। लॉजिकली देखा जाए तो हमें सिर्फ एक सिंपल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना था यहाँ पे। तो इसमें आप क्या ऐड करोगे, 2, x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट मल्टीपल जो हमारा है वो है 1058, और उसमें अगर आप 2 माइनस करते हो तो आपका डिविडेंड आ जाता है। तो जो भी आपने सब्ट्रैक्ट करा है वही आपको अपने डिविडेंड में ऐड करना है और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ये एक है डिटेल्ड प्रोसेस, बट इसका एक शॉर्टकट प्रोसेस भी मिलेगा आपको, जो मोस्टली जगह अगर आप देखोगे तो वो आपको यही सोल्यूशन बताते हैं। उसमें वो ये एक्सप्लेन नहीं करते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस वो आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले आपने ये डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डिवीजन के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका डिवाइजर है, यहाँ पे आपका डिवाइजर क्या है 23, तो जो भी आपका डिवाइजर है
उसमें से आपको रिमाइंडर माइनस कर देना है, यानी 23 में से आपको 21 माइनस करना है। तो जो भी आपकी ये आंसर आएगी इसको आपको ऐड करना है इन द डिविडेंड, और आपका जो ये वैल्यू आएगी दिस विल बी योर डिविजिबल बाय 23। तो ये वैल्यू 2 आ रही है, ये आपका शॉर्टकट मेथड है कि आप डिवाइजर में से अगर रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी आपका वैल्यू आएगी वो उसी के इक्वल होगी जो हमने लॉन्ग टर्म प्रोसेस में देखा था कि नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 23 होगा। नाउ आई होप योर कंसेप्ट रिलेटेड टू होल नंबर्स वुड हैव बीन क्लियर इनफ। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन दिया है आपको। सबको बहुत मजा आता है नो होमवर्क क्वेश्चन करने में, तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन and I want you to solve it, and then you have to post your answers in the comment section below. I'll also pin up my answer in the question after 1 or 2 days when I'll see some responses from you guys. Okay? और आप इन दोनों वीडियोस को जो मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन के हैं एक साथ कंप्लीटली अगर सॉल्व करोगे तो होल नंबर्स आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe to my channel and share it with your friends so that I can get motivated to make more such videos. Bye.